اور مہیب التم نام میں ہم سب خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور زوردار تالیوں سے خدا کا شکر ادا کریں اس نے مجھے اور آپ کو یہ اجر عطا فرمایا کہ ہم اس کے کلام میں زندہ بابرکت قوت نما باتیں سیکھ سکیں۔ آج پاسٹر جوید صاحب نے کلام سنانا تھا مگر کیونکہ وہ کچھ آفس میں مصروف تھے تو ان کا میسج آیا تو پاسٹر کے دنوں کافی لیٹ آتا ہوں، تو میں نے سیمینار میں یہ 2 دن یہاں پر سیمینار تو ہمارے چرچ کے پاسٹر صاحبان کا تھا، دوسرا سیمینار کورین منسٹری کا تھا، تو اس میں بہت ساری باتیں سکھائیں اور سیکھیں۔ ایمان کی الفت اور ایمان کی یگانگت کا جو حقیقی مقصد ہوتا ہے وہ مقصد ہے خداوند کے کلام کو سنتے ہیں۔ خدا کا بندہ، خدا کا ممسوح، خدا کا سرما اور خدا کا خادم حزقیل نبی جو ہے، جس کے نام کا مطلب ہے کہ خدا کا زور، یا جو جسے خدا نے زور بخشا یا کمر بستہ ہو، خدا کا بندہ حزقیل جو ہے بابل کی سیری میں اسے کیا کر دیا تھا؟ مار ڈالا گیا، کیونکہ وہ خدا کے کلام کو دلیری کے ساتھ سناتا تھا، لوگوں کو جھڑکتا تھا، ملامت کرتا تھا ان کے گناہوں سے۔ لوگوں نے اس کا سر کو پھوڑ دیا اور اس کا بھیجا باہر نکلا۔ ایک عربی مورخ یعنی رائٹر لکھتا ہے کہ اس سے مار ڈالا گیا اور اسے نوح کے بیٹے سیم کی قبر میں سے دفن کیا۔ ایک چھوٹا سا پس منظر ہے حزقیل نبی کے۔ نبی حزقیل ہو یا نبی داؤد ہو، یسایہ ہو، یرمیہ ہو، نبی کی زندگی کا، اس کے ایمان کا جو مقصد ہوتا ہے، جو طرز عمل ہوتا ہے، وہ زندگیوں کو، روحوں کو، قبیلوں کو، خاندانوں کو ایمان میں مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ یہ نبی کا مقصد ہوتا ہے، یہ نبی کی رویا ہوتی ہے۔ نبی سے خدا کلام کرتا ہے اور نبی کو کلام دیتا ہے تاکہ لوگ اس وعدے میں شریک ہوں جس کا وعدہ خدا نے نبی سے کیا۔ حزقیل جو ہے بنی اسرائیل کے سب گھرانوں کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ اسیری کا وقت ہے، جلا وطن ہے، پھر بھی خدا کا کلام سنانے والے دلیر مقصود۔ وہ اپنے وطن سے تتر بتر ہوئے ہیں، مشکل کی زندگی، غلامی کی زندگی، اسیری کی زندگی یاد دلاتی، اور خدا کا ممسوح حزقیل جو ہے ان کے اس دکھ میں، تکلیف میں ان کی ہمت کو، ان کے حوصلے کو بڑھاتا ہے۔ جب انسان کا حوصلہ پست ہو جاتا، وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے، اس کا اٹھنا مشکل ہوتا ہے، مگر نبی رویا سے بھرا ہوا ہے، خادم کلام سے بھرا ہوا ہے۔ وہ اپنے کلام کو دلیری کے ساتھ سناتا رہتا ہے، لوگوں کو گناہ سے ملامت کرتا رہتا ہے، ان کو جھڑکتا رہتا ہے، چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ رونے اور دھونے سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے تو ایمان کے مقصد میں، ایمان کی الفت میں، ایمان کی یگانگت میں، کیونکہ نبی کیا کہتا ہے؟ حزقیل نبی کیا کہتا ہے 37 باپ بھی کہتا ہے خداوند کا ہاتھ کس پر ہے؟ مجھ پر ہے۔ اس نے مجھے اپنی روح میں کیا کیا؟ اٹھا لیا۔ اس پہلے حصے میں خادم کی خدمت
अपनी शान और शौकत में लगा रहूंगा। तो अगर ये मेरा मकसद मान मेरे खुदा का है जिसमें मैं चुन लिया गया हूं, तो मेरा मकसद है रूहों को चुन लिया जाए, रूहों को मकसद बता दिया जाए, रूहों को ईमान के किबले के बारे में बता दिया जाए, रूहों को निजात की बात बता दी जाए, रूहों को बादशाही की बात बता दी जाए। तो मैं कहूंगा खुदा का हाथ मुझ पर। अगर खुदा का हाथ मुझ पर आप पर नहीं है, ना मैं कलाम सुना सकता हूं, ना आप कलाम सुन सकते। इसका मतलब है कि खुदा का हाथ हम पर है। खुदा का मतलब खुदा की बरकत है। खुदा कोई महदूद चीज नहीं है। यह तशबीहात के तौर पर हाथ का इस्तेमाल किया गया ताकि आम फहम शख्स इस बात को समझ सके, जान सके कि खुदा की बरकत क्या है, खुदा का मकाशवा क्या है, खुदा की कुव्वत क्या है, और खुदा की मर्जी और आरज़ू और तमन्ना और राजा क्या है। इसलिए लफ्ज लिखा गया है कि खुदा का हाथ मुझ पर है। इसलिए अब सब कहें कि खुदा का हाथ मुझ पर है। सब कहे ऊंची आवाज, मुझ पर है। आमीन। क्यों? हमें खुदा ने चुना है, सुनने के लिए चुना है। अगर हम कान रखते हैं तो सुनते भी हैं, अगर हम आंखें रखते हैं तो देखते भी हैं, अगर हम टांगे रखते हैं तो आगे चलते भी हैं, आगे बढ़ते भी हैं, अगर दिमाग है तो हम सोचते भी हैं, हिकमत भी रखते हैं, दनाई भी रखते हैं। इसलिए बंदा मर्द मजाह, मर्द मोमन खुदा का सुरमा कहता है खुदा का हाथ मुझ पर है। उसने मुझे अपने रूम में क्या किया? उठा लिया। कितनी बड़ी बात है कि उसने अपने रूम में उठा लिया, यानी जिंदा किया है। मैं कलाम सुना सकूं, मुझे उसने ताकत बख्शी है, खड़ा किया है। और क्या कि उस वादी में जो हड्डियों से पूर थी मुझे उठा। रोया की बात हो रही है, यानी कि खुदा ने मुझे अपना हाथ बरकत दी, मुझे रूह सबा दिया, मुझे उठा लिया, मुझे उस वादी की तरफ बढ़ा दिया जो हड्डियों से पूर थी, यानी कि कलीसिया की बात। अब मुझे उनके पास चौकी आया और देख वो वादी के मैदान में क्या कसरत निहायत क्या थी? सूखी हुई। सूखी हुई का मतलब है कि कमजोर थी। वो कलीसिया कमजोर थी। वो हड्डियों कमजोरी में उनकी हड्डियां सूख चुकी थी, उनकी जिंदगी सूख चुकी थी, क्योंकि वो खुदा के कलाम से दूर हो चुके थे। मगर खुदा ने उस वादी में, उस इलाके में मुझे उतार दिया ताकि उस कलीसिया की कमजोरी को मैं दूर कर सकूं। खुदा का कलाम सुना था, खुदा की बरकत से आगाही देखा, खुदा के मकसद से उनको आगाही देखा, ईमान की बात सिखा कर, निजात की बात सिखा कर, तौबा की बात सिखा कर, रूह की बात करके, ताकि जो वादी है और उस वादी में रहने वालों की जो हड्डियां जो सूख चुकी थी उसमें क्या आ जाए? कुव्वत आ जाए। उसने फरमाया, किसने फरमाया? मेरे खुदा ने मुझसे फरमाया। मैंने उसके कलाम की बात को किताबें क्योंकि मैंने नहीं बल्कि मेरे खुदा ने, मेरे रब ने मुझसे फरमाया, कलाम की। तो हम किससे बात करें? किसकी बात सुने? खुदा की। तो खुदा हमसे कलाम करता है एक दूसरे के वसीले से। खुदा अपने बहुत सारे काम ज़मीन पर इंसानों के वसीले से पाया तकमील को लेकर जाता है। अपने बंदा से उसने क्या फरमाया? ऐ आदमजात, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती है? दिस इज द क्वेश्चन। खुदा ने सवाल किया, क्या बंदा, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती है? क्या ये कमजोर कलीसिया फिर से ताजगी हासिल कर सकती है, उल्फत हासिल कर सकती है, कुव्वत पा सकती है जिस तरह मैं चाहता हूं? क्या हम भी अपनी हड्डियों में, अपने बदन की हड्डियों में बेईमानी के सबब से कहीं
कभी सूख तो नहीं सके। अगर हम सूख चुके हैं तो खुदा आज मुझसे और आपसे ये फरमा रहा है कि ऐ आदम साहब, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती? हम मुर्दा पड़ गए, हमें क्या होना? जिंदा होना है। मैंने जवाब दिया, मरने मुझा ने क्या दिया? जवाब दिया, ऐ खुदावन तू ही जानता है। उसने ये नहीं कहा कि मैं घर से गया, खुदावन तू ही जानता है। तू चाहे तो ये हड्डियां, ये मुर्दापन, ये कमजोर कलीसिया फिर से जिंदा हो सकती है। इन पर कलाम चढ़ सकता है, इन पर कलाम असर पैदा कर सकता है, इनकी सूरत बदल सकती है, इनका बदन बदल सकता है, इनकी रूह बदल सकती है। ये जिंदगी तेरी बनाद है, इसलिए मैं नहीं जानता, तू जानता है। मेरी सोच वो नहीं है जो इस सोच में तू है। फिर उसने फरमाया, फिर उसने मुझसे फरमाया, तू इन हड्डियों पर क्या का नबूवत का कलाम कहता है कि खुदा ने फिर कलाम किया, फिर सिखाया कि इन हड्डियों से क्या कहा? नबूवत का, यानी इन हड्डियों से, इन कमजोर कलीसिया से कलाम का। नबूवत का मतलब कलाम सुना, इनको समझा, इनकी अकल में कलाम डा, इनके पद में कलाम डा, इनकी रूह में कलाम दाखिल का, ताकि ये हड्डियां, ये सूखी, ये कमजोर कलीसिया जिंदा हो जाए। हमारी कमजोरी हमारी सोच है, हमारी कमजोरी हमारा दिल है, हमारी कमजोरी हमारा बदन है जो कलाम से खाली है। और खुदा का बंदा, खुदा का वंश से खुदा कहता है इन हड्डियों से तो नबूवत का, कलाम का मैं आप बताऊंगा, मैं इन पर तेरी नसें चढ़ा दूंगा, इन पर मैं कलाम की कुव्वत साबित कर दूंगा। कभी हमने अपनी जिंदगी में देखा हमारी जिंदगी का क्या हाल है? हमारी जिंदगियों के बेशुमार खराब। एक खादम होता है, उसकी जिंदगी में बेशुमार परेशानियां होती, उसकी खिदमत में बेशुमार परेशानियां होती, अपनी उसे भी तंग करता है, परेशानी में हडेलता है, ताकि वो उस तरह कलाम ना कर सके जिस तरह खुदा चाहता है। मगर खुदा ने अपने बंदे को ये फरमाया, ऐ आदम साहब, ऐ मेरे बंदी, ऐ मेरे कदम, इन हड्डियों को क्या कहा? जिंदा हो सकती। जवाब दिया, खुदा तू जानता। फिर उसने फरमाया, इन हड्डियों पर क्या कहा? नबूवत का। और इनसे क्या? ऐ सूखी हड्डियों, खुदावन का कलाम सुनो। तो मेरे से और आपसे आज क्या कह रहा है? ऐ सूखी हड्डियों, खुदा का कलाम सुनो। हम गुनाह के वसीले से क्या है? कमजोर है। हमारी कमजोरी में भी खुदा हमसे बात करता है, हमसे कलाम करता है, ताकि हम उसके कलाम को सुने। कलाम कहता है, कलाम सुनने से ईमान बढ़ता, सुनना मसीह के कलाम से। हमें सुनते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। एक मिशन ट्रेनिंग प्रोग्राम था अभी 2 दिन पहले लिबर्टी होटल में, तो जापान से मिशनरीज आए हुए थे, तो मुझे भी वहां पर मौजूद किया गया। मैं और मिसिल और मसा मेरे साथ 30-35 पास्टर्स हैं। 30-35 पास्टर्स में हर शख्स क्या कहा? हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी कलीसिया हदिया नहीं देती, हमारी कलीसिया में पेट्रोल के लिए पैसे नहीं देती, हमारा गुजारा बहुत मुश्किल है, हमें पाकिस्तान में इतनी मुश्किलात है, इतनी मुश्किलात है, इतनी मुश्किलात है। उन्होंने उन्हें अपना खुदा समझ, हम इतना कुछ बताएंगे, जितना बताएंगे उतना हमें मिलता है। तो मेरी बारी आई, तो मैंने कहा, मेरा नाम पास्टर लियास है और मैं 23 साल से मुल्क पाकिस्तान में खिदमत कर रहा हूँ। मेरा चर्च बड़ा है, कलीसिया थोड़ी है, मगर मैंने अपनी कलीसिया को मिशनरी बनाया। दे आर मिशनरी। तो वो
وہ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، میں ان پر اعتماد کرتا ہوں، اور ان کی دعاؤں کے وسیلے سے، ان کی برکت کے وسیلے سے میں پورے پاکستان میں ٹریول کروں۔ میرے کبھی مجھے کوئی پریشانی نہیں آئی۔ پاکستان میں میں نے غیر قوموں میں بھی گھروں میں جا کر، ڈیروں میں جا کر، ان کے گھروں میں جا کر عبادت کی پاسوں سے بیٹھا۔ ہم اپنی غلطیوں کے وسیلے سے ستائے جاتے ہیں۔ پھر کچھ پاس میں نے کلام بولنا شروع، آپ کو پاکستان میں اتنا پرسیکیوشن ہوتی، اتنے ریپ کے کیس ہوتے ہیں، آپ یہاں پر آ کر غلط بات۔ کیا میرے دوست نے کہا کہ آپ کو خاموش رہنے، جواب دینے کی ضرورت۔ تو کہنے کا مطلب ہے اگر ہم یہاں پر ہیں تو اسی طرح کرتے رہیں گے، کچھ نہ کریں گے تو پھر فائدہ ہے۔ اگر آپ میری کلیسیا میں آپ کی جا کے گواہی نہ دوں، آپ کی تعریف نہ کرو، آپ کو نکمے بنا کے پیش کرو، آپ کی ہدیوں کو رد کرو، آپ کی مدد کو رد کروں، تو پھر میں خدا کا خادم تو نہ ہوں۔ مجھے روکھی میں کیا کرنا گزارا، اور اپنے خدا کی برکت کو جھٹلانا نہیں۔ جس ایمان سے ہم دیے جاتے ہیں، اس ایمان سے اگر استعمال کرتے ہیں تو کمی نہیں۔ تو خدا انہی لوگوں سے کلام کرتا ہے۔ ایسو کی ہڈیوں، خداوند کا کلام سنو۔ بے ایمان، بے اعتقاد، بے حس، بے ویژن جب ہم بن جاتے ہیں تو خدا پھر ہم سے یہی کہتا ہے، خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح، کس کے اندر؟ ان سوکھی ہڈیوں، کمزور کلیسا، کمزور لوگوں کے اندر کیا ڈالوں گا؟ روح ڈالوں۔ جب کچھ بھی نہ تھا تو لکھا ہے کہ خدا کا روح کیا کرتا تھا؟ پانیوں کے سطح پہ کیا کرتا تھا؟ تو خدا نے جب مٹی سے آدم کو بنایا تو زندگی کے لیے کیا رکھا ہے کہ اپنا روح پھونکا۔ زندگی کیا ہوئی؟ زندگی جاری ہوئی۔ تو خدا بھی کہتا ہے ان ہڈیوں سے یوں فرماتا، میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا، تم زندہ ہو جاؤ گی۔ خدا میں روح میں زندہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے سوکھے پن کو دور کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم ہرے بھرے ہو جائیں، خدا میں تر و تازہ ہو جائیں۔ آمین۔ زندہ ہو جاؤ گے، تم پر نسیں پھیلاؤں گا تاکہ کہ تمہاری شریانیں پھر سے کیا ہو جائے گی؟ بحال ہو جائے۔ گوشت بھی چھڑاؤں گا، ہڈیوں کو بھی طاقت دوں گا، نسوں کو بھی طاقت دوں گا، گوشت بھی۔ اتنی برکت زندگی کی برکت۔ اگر ہم سوکھ جائیں گے کلام کے بغیر، مسیح کے بغیر، روح کے بغیر، تو ہماری ہڈیاں ہی تو نظر آئیں گی۔ یہی حال اس وقت کے۔ تو خدا کہتا ہے کلام کا، میں ان کو ہڈیوں سے، تو میں ان کے اندر کیا ڈالوں گا؟ روح ڈالوں گا، یہ زندہ ہو جائیں گی، میں ان کو نس سے بڑھاؤں گا، اور کیا کروں گا؟ گوشت بھی، تم کو چمڑا بھی بناؤں گا۔ ہماری سکین کے اوپر سب سے بڑا کیا ہے؟ چمڑا ہے۔ مکمل انسان بنا دوں گا، ایماندار بنا دوں گا، راستباز بنا دوں گا۔ جب میرے اوپر چمڑا چڑھائے گا تو مجھے طاقت ملے، تم دم بھی پھونکو گا اور زندہ بھی ہوں گے۔ اپنا دم بھی پھونکوں گا تو کیا ہو جائے گی؟ یہ زندہ ہو جائے۔ مٹی کے اسٹرکچر میں خدا نے کیا لکھا؟ اپنا دم پھونکا اور زندگی جاری ہوئی۔ اسی طرح جس پہ گوشت بھی چڑھے گا، ہڈیوں پر نسیں بھی آ جائیں گی، روح بھی ڈالوں گا اور اپنا دم بھی پھونکوں گا۔ اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں۔ یہ جان جائیں گے کہ میں ہی خداوند ہوں، سو ہوں، تمہارا یہوہ ہوں، تمہارا الوہیم ہوں، تمہارا مہیا کرنے والا۔
आमीन। बस मैंने हुक्म के मुताबिक क्या कर दी, खुदा ने जो बात नबी से कही तो खुदा के बंदा ने क्या कर दी, उसी के मुताबिक क्या कर दी, नबूवत कर दी, कलाम कर दिया। और जब मैंने नबूवत कर रहा था तो लिखा है शोर हुआ और देख जलजला। क्या हुआ, शोर हुआ और जलजला। ईद पेंतिकोस्त के दिन हम क्या देखते हैं कि जोर की आंधी का और आग पड़ती हुई ज़बानें उनको क्या दी, दिखाई दी। तो ये बातें तो पहले भी खुदा फरमा रहा है। जब मैं नबूवत कर रहा था तो शोर हुआ और देख जलजला आ गया, तूफान आ गया, लहर शुरू और हड्डियां आपस में क्या हो गई, और वक्त शराकत का अमल शुरू हो गया। हर एक हड्डी अपनी हड्डी से, और मैंने निगाह की और देखता हूं नसें और गोश्त उन पर क्या आया है, आमीन। कमजोर लोगों को खुदा की बरकत का अमल जारी और सब, हड्डियां हरावल पड़ गई, नसें आ गई, गोश्त चढ़ाया, चमड़ा चढ़ाया और हड्डियां आपस में मिल गई, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की देखता हूं कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ाया, उन पर चमड़े की पोशाक, चमड़ा भी उनके ऊपर क्या आ गया है, चढ़ आया, पर उनमें दम ना था। इस सारे उम्र के बाद उनमें दम ना था, यानी जिंदगी ना थी। तब उसने मुझसे फरमाया, खुदा बार बार तीसरे हिस्से में फरमा रहा, पहले 2 दफा फरमाया, अब तीसरी दफा। तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत का, पहले नबूवत, दूसरी नबूवत, अब तीसरी नबूवत। तो हुआ नबूवत का ऐ आदमजाद, और हुआ से कह कि खुदावंद यूं फरमाता है, ऐ तुम तो चारों तरफ से आओ और इन मकतूलों पर फूंको कि जिंदा हो जाए। हम क्या चारों तरफ से उन मकतूलों पर क्या करो, फूंको, और ये क्या हो जाए, दलेर हो जाए, कुव्वत पाए, खुदा के मकसद में आ जाए, खुदा के कलाम में आ जाए, खुदा के गवाह बन जाए। बस मैंने हुक्म के मुताबिक क्या किया, जो बात मैंने सुनी, जिस तरह मुझे कहा गया उसी तरह मैंने नबूवत की। नबूवत का राज़ा हो, हुक्म नबूवत की, और उनमें दम आया, वो जिंदा होकर अपने पाँव पर क्या हो गई, खड़ी। जो बात मैंने सुनी उसके मुताबिक मैंने नबूवत की और अपने पाँव पर क्या हो गई, जिंदा हो गई। खड़ी होने का मतलब खुदा की शुक्रगुजारी करने लगी, और निहायत ही बड़ा लश्कर। तब उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजाद, ये हड्डियां तमाम बनी इसराइल में देख, ये कहता है कि तुम्हारी हड्डियां, हमारी हड्डियां। खुदा ने जो कलाम किया उसकी बरकत से, इसलिए जब हम खुदा का कलाम करते हैं तो खुदा हमारा हरावल दस्ता बन जाता, खुदा हमारा नबूवत करने वाला बन जाता, खुदा हमारा कलाम करने वाला बन जाता। उसके कलाम में क्या क्या लिखा, ज़बूर में क्या लिखा है, तेरा कलाम मेरी कदमों के लिए चिराग, मेरी राह के लिए क्या है, रोशनी। इसी जिंदगी के कलाम को रोशनी के तौफा, चिराग के तौफा, ईमान के तौफा, नजात के तौफा कबूल किया करें, और अपने सूखे पन को खुदावन के आगे रखें, ताकि इस पर नसें, गोश्त और चमड़ा चढ़ जाए, और खुदा हमें जिंदा करे और हम अपने पाँव पर खड़े हो जाए, खुदावन का शुक्र अदा करें। खुदावन आज के कलाम के वसीले से आप बड़ी बड़ी खुदावन का